Assalamu alaikum students, today I am doing question number 2 of exercise number 6.3, which is at page number 127. In question number 1, students, you have done to find a square root by factorization. Now here question number 2 is again the same question, find square root, but this time by division method. Okay, what is division method to find square root? It's in solution. First you have to arrange your this expression in descending order. Okay, see whether this expression is in descending order or not, right? This with now I have this first part 4x square, I have x y square y, I have two variables. In two variables, you will see only its descending order with respect to x or with respect to y. I am observing its descending order with respect to x. Look, it's x power 2, x power 1, and then after this term x power 1. These two terms having x power 1, so I will arrange these two terms together, and then y square and y and 16, I will take these terms as my constant, okay, because x is not present. So in solution, arranging in descending order. You know what is descending order? You will move from greater value towards lowest. Okay, तो हम ये कर लेते हैं arranging in descending order. I am arranging, it's 4x square, right, then plus 12xy plus 16x plus 9y square plus 24y plus 16. Look students, this is my descending order when I have two variables. See, highest power of x is 2, then here x power 1, again x power 1. You can write 16x before this, doesn't matter. Okay, you just see the value of x. Here I wrote this expression in descending order with respect to the variable x. Okay, आपने कोई एक वेरिएबल चूज़ करना है, या तो x के रिस्पेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर लें और y के रिस्पेक्ट लें. ठीक है, मैंने x के रिस्पेक्ट लिया है. सो ये देखिए, x की पावर 2, x power 1, x power 1, right? Then here x power 0, there is no x is present, so x power 0 है, यहाँ पे भी x power 0 है, x power 0. ठीक है, तो ये मैंने साइड पे लिख लिया जिसमें वेरिएबल x नहीं प्रेजेंट था. So this is my descending order of the given expression. Now the turn of its square root. To find its square root, to find its square root, I have I want more space, so मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं रेस करके यहाँ टॉप पे मैं लिखना चाह रही हूँ. ओके, what was my question? यहाँ पर जो मैंने अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो था 4x स्क्वायर प्लस 12xy plus 16x, then plus 9y square plus 24y plus 16. Okay students, this is descending order form. Square, then 12xy, 16x, 9y square, 24y and 16. ये already I have written, तो मैं यहाँ बुक से देख के दोबारा लिख रही हूँ. Now for square root by division, draw a straight line, और इस तरह से आप एक टेबल सा बना लें. ठीक है, एक स्ट्रक्चर. ओके, टू फाइंड टू फाइंड स्क्वायर रूट, यहाँ पर कोई डिवाइज़र नहीं है, कोई क्वोशंट नहीं है, राइट. इन एवरी स्टेप आप जो मूव करेंगी तो आपका डिवाइज़र नया होगा. ओके, एवरी स्टेप हैज़ इट्स ओन डिवाइज़र एंड क्वोशंट. सो कम टू इट्स first to find first divisor and first quotient. What you have to do students, आप लोगों ने क्या करना है, first term का, the term is present, इसका square root ले लें on your rough side पे. What is square root of 4x square? तो square root of 4x square हमारे पास क्या आता है, under root 4
2 आ जाएगा और ये कैंसिल इससे हो जाएगा 2x। सो 2x इज़ माई डिवाइज़र एंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन में रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका क्वोशंट भी होगा। सो ये भी 2x आ गया। ओके राइट, दोनों आप सेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 4 x इंटू एक्स स्क्वायर, देन लीव सम स्पेस, यहाँ आपने स्पेस फुल एक लाइन की छोड़नी है, चेंज द साइंस, कैंसल आउट। ओके एंड देन क्या करना है, आई एम ब्रिंगिंग दिस एक्सप्रेशन डाउन, दैट इज़ 12xy प्लस 16x प्लस 9y स्क्वायर 24y प्लस 16। ओके मैंने इसको डाउन लिख लिया। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, क्या आपने याद रखना है, टू गो टू नेक्स्ट स्टेप, कि नेक्स्ट स्टेप में आपने डिवाइज़र फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये जो क्वोशंट है इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, राइट। और इन सम बुक्स दे सेड दैट मल्टीप्लाइड इट विद 2, वो भी फाइन, इट्स फाइन, आप यूँ भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 और 2 4 ऐड करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम 4x लिखेंगे, थोड़ा पीछे लिखेगा, इसके नीचे नहीं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मैंने अपना न्यू डिवाइज़र अभी फाइंड आउट करना है। आई होप स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा। सिंपल, आपने इस टर्म का स्क्वायर रूट ले लिया ऑन रफ और उसको डिवाइज़र भी बना दें एंड क्वोशंट भी बना दें। एंड व्हेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस फर्स्ट स्टेप इज़ डन, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें और सिंपली इसमें 2x ऐड कर लें। ओके तो ये हमारे पास क्या आ गया 4x, मल्टीप्लाइड बाई 2 भी आप कर सकती हैं, राइट। अगर ये नहीं करना चाहती तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लें, तो सी इट्स 4x, राइट। इट्स अप टू यू, जिस तरह से आप करते हैं मल्टीप्लाई कर लें, जो भी है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू दिस स्टेप। मैंने आपसे क्या कहा था, हर स्टेप का अपना डिवाइज़र और अपना क्वोशंट होता है। तो स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू अ टिप, इट इज़ वेरी इजी टिप। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट यू विल गेट 12xy, ऑब्वियसली 4 3 12 और y आ जाएगा। बट इन सम क्वेश्चंस दिस is useful, ठीक है। बट इन when you have expression in the form of fraction, वहाँ थोड़े से आप confuse हो जाएंगे। तो for that part एक एग्जाम्पल भी है एंड वन पार्ट इज़ आल्सो प्रेजेंट। फॉर दैट पार्ट हम स्टार्ट से ही वही करते हैं, अपने फॉलो करते हैं एक ही चीज़ को, जो हमारे बाकी क्वेश्चंस में भी उसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। ये नहीं है कि आई एम डूइंग दीज क्वेश्चंस बाय दिस मेथड एंड लास्ट पार्ट डूइंग बाय अनदर मेथड, नो। हम एक ही पार्ट से करते हैं, और वो क्या है मेथड मैं आपको हिंट देने जा रही हूँ। वो ये है 12xy। ओके एवरी टाइम व्हेन यू वांट दिस डिवाइज़र, तो आपने रफ में क्या करना है, फर्स्ट टर्म दिस इज़ माय फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इसको आप डिवाइड कर देंगे बाय योर दिस डिवाइज़र में जो टर्म आ रही है फर्स्ट टर्म। ओके सो स्टूडेंट्स याद रहेगा, टू फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइज़र क्या आप स्टूडेंट्स करेंगे, ऑब्वियसली इसका तो क्वोशंट होगा, तो क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए यू विल डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय दिस, यहाँ पर जो भी फर्स्ट टर्म होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही टर्म है तो यू विल डिवाइड दिस, इसको आपने ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। सो x कैंसिल विद x, 4 3s are 12, so it becomes plus 3y and plus 3y, you know जो क्वोशंट आप यहाँ लिखते हैं वो यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। Now this is my quotient. Up now students, what you will do, you will multiply this whole divisor by this quotient, because इसका काम जो था 2x, this you have done in your first part, okay, first part में आपने done कर लिया है। Now the turn of this quotient, you will multiply these two terms by this quotient one by one, okay। First I am multiplying this 4x with this 3y, तो क्या हो जाएगा 4 3s are 12xy, 12xy and then plus 3 3s are
उप्स 9y² तो अंडर द टर्म आएगा रिलेटेड जो भी टर्म है, ये तो xy है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 9y²। आई होप स्टूडेंट्स से क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया है, मैंने ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया है और जो क्वेश्चन यहाँ लिखना है वो क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे, राइट। देन ये मल्टीप्लिकेशन डन हो गई है इन योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन विद दीज टू टर्म्स, यहीं पर आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 3 12xy प्लस 3 3 9y² किया, एंड फिर जो टर्म्स लेफ्ट हैं उनको नीचे लिख लें, ब्रिंग देम डाउन, 16x प्लस 24y प्लस 16, ये आपके पास आ गया, ओके। अब देखें, नाउ मैंने क्या किया था, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड दिस क्वोशंट, ठीक है। इस क्वोशंट को आपने ऐड कर देना है इस डिवाइज़र के साथ, राइट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद 2, दोनों तरह से कर सकते हैं। ये नहीं है यू विल मल्टीप्लाई होल दीज टू टर्म्स विद 2, नो, एवरी टाइम जो क्वोशंट और डिवाइज़र होता है उसको आपने ऐड करना है। अगर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सो जस्ट डू दिस स्टेप, 3y तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 3 6y, ओके। हमने ये काम कर लेना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, नेक्स्ट में आप क्या कहेंगे, वी विल फाइंड क्वोशंट। तो क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये आप रेस कर दिया करें, ओके। नाउ अगेन आई हैव टू फाइंड नेक्स्ट क्वोशंट। नेक्स्ट क्वोशंट के लिए जो मैंने आपको टिप बताई आप उसी तरह से करें, बजाय कि इंस्टेड ऑफ 4x को, ऑब्वियसली आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 4, आई विल गेट 16, बट टू द लॉन्ग रन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो माई टिप वॉज डिवाइड द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करें, दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म, ओके। फर्स्ट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको ऊपर रखना है आपने, इससे डिवाइड करें, यू विल गेट क्वोशंट। ये देखिए 4 4 16 एंड x कैंसिल विद, सो येस माय नेक्स्ट क्वोशंट इज़ 4, तो हम वो यहाँ पे भी लिख लेते हैं एंड यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स टू फाइंड क्वोशंट ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि फॉलो दिस स्टेप। आप फिर इजीली लास्ट पार्ट और फ्रैक्शन वाला कर सकते हैं जो यूजुअली पेपर में आता होता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन, फ्रैक्शन वाली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देते हैं, तो उसके लिए you have to follow this tip, right? Now students, as I have done this multiplication in first part, this multiplication in second part, अब इसको भी आपने छोड़ देना है. Now the turn of this quotient, okay? तो ये क्या आ जाएगा? 4 times 16x, 4 times 16x plus 6 4s are 24y plus 4 4s are 16, and ये cancel out कर दें. So आपके पास this is done 2x plus 3y plus 4. मैंने क्या किया है, इस 4 को with all these three terms I multiplied. Now what should be your answer? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा at the end जो उन्होंने कहा हुआ है. Answer will be this is question 4x square, therefore लिखेंगे 12xy 16x plus 9y square plus 24y plus 16 is equals to, this is your required plus minus with plus minus, okay. ये आपका क्या होगा at the end when you have done. तो your square root of this given expression is this with plus minus sign. So this is your first part, how to find square root by division method. Okay, now students, it's second part. Second part is
your x4 minus 10x cube plus 37x square minus 60x plus 36. Students, this is already in descending order, okay. So I did not write in solution that first arrange in descending order. It's look, its higher power is 4, then 3, then 2, then x power 1 and then 0. It is already in descending order form. So first step is to find quotient and divisor. So in rough you will take the square root of first term, x4, square root of first term is obviously x square. So x square will be your divisor and your quotient, okay. So when you multiply x square with x square, it becomes x4 minus, and bring this term down, this expression, sorry, minus 60x plus 36 plus 36. So यहाँ students क्या होगा, then to go to next step you will add this quotient or you will multiply, it becomes obviously 2x square, okay. Then raise this thing. Now students, what I have tell you to find next quotient find out करने के लिए I have given you a tip that divide this first term. Look, this is my first term of this expression, divide this term by your this divisor. So x cancel with x, 2 5 times 10, so it becomes minus 5x. So this is my quotient, okay. This is very simple tip, right. Minus 5x आपका क्या आ रहा है, this is your quotient, minus 5x. Now as you know this multiplication is done, यहाँ पर इट्स डन. अब यहाँ हम नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लिखेंगे सॉरी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस क्वेश्चन विद दीज टू टर्म्स. व्हेन आई मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर विद माइनस 5x, तो ऑब्वियसली 2 5 से 10 माइनस 10x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर. तो इट बिकम्स माइनस प्लस, कैंसिल करें, प्लस माइनस माइनस एंड द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36. इन टर्म्स को आपने नीचे लिख लिया. नाउ अगेन बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको ओनली मल्टीप्लाई दिस विद 2 जो नया डिवाइज़र आता है, और हम ऐड कर लेते हैं, और ऐड मीन्स वही क्वोशंट एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है. माइनस साइन है तो माइनस के साथ 2x स्क्वायर एंड नाउ माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 10x, ठीक है, ये आ जाता है. और स्टूडेंट्स इसको छोड़ के जो न्यू क्वेश्चन आपके पास डिवाइज़र आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 2 5 से 10 माइनस 2. ये स्टूडेंट्स को मैं इसलिए नहीं बताती, वो क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है. ओनली आपने ये जो आ रहा है दिस न्यू डिवाइज़र, इसको आपने मल्टीप्लाई बाई 2 करना है और न्यू डिवाइज़र में ही यही क्वेश्चन ऐड कर देना है, ओके, राइट. Now again to find quotient, so every time whenever you have to find quotient, so my tip is that divide the first term of this expression. इस expression की first term क्या थी, 12x square, इसको divide कर लें by this divisor of this first term, ठीक है, ये जो हमारे पास आ रहा है. तो 2 6 are 12, x cancel with x, so 6x, sorry it's x square, yes it's 6. यहाँ पर क्या आ रहा है, x square है, सॉरी मैंने यहाँ पर x square कैंसिल आउट हो गया, so 6, x square cancel with x square and 2 6. So my quotient is 6. I hope students this tip will work for you to find quotient. Now write this 6 over here and over here at the quotient place, ठीक है. अब हमने क्या करना है, this multiplication is done in first place, this is in second place. Now term of this 6 multiply करना है with all these 3 terms. तो क्या हो जाएगा, 2 6 times 12x square minus 10 6 are 60x plus 6 6 36.
राइट स्टूडेंट्स, इस होल टर्म को आई मल्टीप्लाइड दिस होल टर्म विद दिस 6, ठीक है। तो ये हमारा सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो कैसे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट को? इन देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन this will be equals to plus minus of this quotient x square minus 5x plus 6. So by this way you can find the square root of algebraic expressions by division method. Okay, now my next question, next part. Okay, now my fourth part, I did not write over here third part, you have to do yourself, because in third part they already give you algebraic expression in descending order. Okay, that is why I am doing its fourth part. Fourth part is not in the form of its descending order. ओके ना ही ये उसके असेंडिंग ऑर्डर में है, इट इज़ ये आपके पास मिक्स फॉर्म से दी हुई है। तो इन सोल्यूशन फर्स्ट यू विल राइट अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंज कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में। द हाइस्ट पावर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाइस्ट पावर, इट्स 16x4 देन माइनस 24x क्यूब, then minus 12, oops, 4, 3, then 2, plus 25x square, then 4, 3, 2, 1, minus 12x and plus 4. So students, what I have done, I have written this expression in my descending order form, that is 16x4 minus 24x cube plus 25x square minus 12x plus 4, ठीक है, the descending order form है। Now I'll start from here onward to find its solution, ठीक है। तो मैं ये रेस करके ऊपर लिख लूँ, ये स्ट्रक्चर सा बना लीजिएगा आप। डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म थी 16x4 minus 24x cube 25x square 12x plus 4। चेक कर लेते हैं हम फ्रॉम बुक। 16x4 minus 24x cube plus 25x square 12x plus 4। ओके, डन। नाउ स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेना हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड डिवाइज़र के लिए यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म 16x4। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 16 का क्या आ जाएगा 4 एंड x4 x square. So my divisor and my quotient will be 4x square. 4 times 16, cancel out, square. All right, now my next step is add or multiply it with 2. So I'm going to add, so it becomes 4 and 4 8x square, or you can multiply it with 2, it's again 8x square, right? Now again to find next quotient, what I have given you a tip, the tip is divide this first term, ठीक है, इस expression की first term आपने लेनी है। दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म और इसको ऊपर लिखना है आपने, डिवाइडेड बाय दिस डिवाइज़र। सो x कैंसिल विद x स्क्वायर एंड 8 3 times 24 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। विदाउट आप मल्टीप्लाई करें, सोचें, हो सकता है साइंस भूल जाएं, तो दिस इज़ वेरी सेफर टिप फॉर यू। नाउ मल्टीप्लाई आप इस न्यू क्वेश्चन को करेंगी, इसको आप छोड़ देंगी, ठीक है, ये आप नहीं करेंगी मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैं ऐसे कर लेती हूँ। सो आई एम ओनली मल्टीप्लाइंग दिस माइनस 3x विद बोथ दीज डिवाइसेस, ठीक है। सो 8 3s are 24 minus 24x cube
माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इन दोनों टर्म्स के साथ ऐड किया है और ये लाइन आगे तक ले जाए प्लस माइनस। सो 25 माइनस 9 मेरे पास आ जाएगा 16 4 एंड ये एज इट इज़ होगी। स्टूडेंट्स वी हैव टू डील ओनली विद दिस न्यू डिवाइज़र। ठीक है, इन एवरी स्टेप न्यू डिवाइज़र के साथ आपने डील करना है। सो इसमें ऐड कर दें माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6x, और यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 2 2 3 ज़ार 6। ठीक है, ओनली दिस न्यू डिवाइज़र, आपने उसकी तरफ नहीं जाना। सो अगेन द टर्न ऑफ न्यू क्वोशंट। तो न्यू क्वोशंट कैसे फाइंड आउट करने हैं? माई दिस टर्म इज़ 16x स्क्वायर, ऐसे करती हूँ मैं, इस पेन से कर लेती हूँ, 16x स्क्वायर। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 16x स्क्वायर। आई डिवाइड दिस बाय माई फर्स्ट डिवाइज़र, divisor of first term of this divisor. So 2, my next new quotient is 2. अब क्या करना है स्टूडेंट्स? These two already multiplied. Now I am going to multiply this 2 with all these 3 terms of divisor. तो क्या हो जाएगा? 8 2 ज़ार 16x स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ार 12x प्लस 2 2 ज़ार 4. So see, your remainder is 0. It means this is your, this is what? This is your required square root. Therefore square root of your question. ठीक है, अब यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे, नॉट दिस अरेंज्ड फॉर्म। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24x क्यूब 16x4 इज इक्वल्स टू, this quotient is your square root 4x square minus 3x plus 2. This is your answer. Make a box on your answer. I hope students this is clear to you how to find quotient in every step, right? Now come to its last part. Last part is fifth part. It is in the form of fraction. X square upon, यहाँ लिख लीजिए, x square upon y square minus 10x upon y. स्टूडेंट्स ये यूजली पेपर में आ जाता है, ठीक है, बट एज यू नो योर पैटर्न इज़ चेंज्ड, अनसीन भी आ सकते हैं. सो यू जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट, वट एवर एक्सप्रेशन दे हैव गिवन यू, you have clear concept of finding square root by division method, right? If you follow these simple tips जो मैंने आपको बताई हैं, तो you can do very easily square root by division method. Now students, this is already in arranged form. Look, the power of x square, it's 2, descending order, it's 2, it's 1, and here is no x is present, so it's power 0. एंड यहाँ पर देखें, जो न्यूमरेटर में डिसेंडिंग होता है, अगर उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो असेंडिंग उसका डिसेंडिंग होता है, राइट? तो दिस इज़ ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इट्स फर्स्ट स्टेप. ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म. तो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ x अपॉन y. सो x अपॉन y, x अपॉन y, राइट? तो यहाँ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर. कैंसिल आउट हो गया. x स्क्वायर. ओके, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज़ ऐड, ठीक है, एडिशन ऑफ दिस x अपॉन y. वही जो यहाँ लिखा था वो ऐड करना है.
तो स्टूडेंट्स आई एम एडिंग इन माय रफ साइड x by y plus x by y. You know how to add two rational expressions. Y is simple, x plus x 2x. So my after addition my result is 2x upon y. और you can simply क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें this with 2. when I multiplied it with 2, तो 2 obviously multiplied with numerator, तो 2x upon y आ जाता है. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ फॉर नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप इज़ again the turn of finding quotient. Now see, quotient find out करने के लिए what I gave you tip, that is divide this first term by this divisor. So look, मैं यहाँ पर divide कर लेती हूँ, -10x upon y, this फर्स्ट टर्म डिवाइडेड. अब मैं यहाँ डिवाइडेड का साइन पुट कर रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइडेड बाय 2x बाय y. ओके, फर्स्ट टर्म को इस डिवाइजर से डिवाइड करें. सो चेंज करें इस साइन को बाय मल्टीप्लिकेशन साइन. तो देखिए y कैंसिल विद y, 2 5s are 10 एंड x कैंसिल विद x. सो योर क्वोशंट इज़ -5. गॉट इट स्टूडेंट्स. ये देखें यहाँ इस केस में, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता आप स्टूडेंट्स के लिए सोचना कि यहाँ हम क्या करेंगे. वैसे भी आ जाता है, नेक्स्ट में आई थिंक डिफ़िकल्ट होगा. सो -5 इज़ माई नेक्स्ट क्वोशंट. तो क्या होगा, 5 2s are 10, -10x by y and minus plus 25, leave some space, कैंसिल आउट हो गया. 27 minus 25 2. All right, now again what you have to do on this side, you will multiply it only this by 2 और simply add कर दें. तो ये 2x by y minus plus 10 आ जाएगा. और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो सॉरी -10, -5 और 10. नाउ अगेन स्टूडेंट्स द टर्न ऑफ न्यू क्वोशंट. यहाँ न्यू क्वोशंट फाइंड आउट करना है. तो क्या मैंने आपको टिप बताई थी, द टिप वाज दैट यू विल डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म यू विल डिवाइड इट बाय दिस फर्स्ट टर्म, डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म आ रही है. तो 2 मल्टीप्लाई करें, चेंज y by 2x, 2 cancel with 2, so your quotient will be y upon x. So simply y upon x. Look students, कितनी easily you got your quotient. Otherwise it is very difficult कि आप सोचें कि इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें. Just remember that divide this first term of this expression जो रिमाइंडर में आ रही होती है, उसको आप इस हमेशा फर्स्ट टर्म से करना है, सेकेंड थर्ड से नहीं करना. ठीक है. So my quotient is y upon x. Now obviously last step is multiply. Now you will multiply this term, where is my green, yes, you will multiply 2x by y with this. This is already done, this is done. इसको multiply करना है with all these 3 terms. तो 2x by y को when you multiplied it with y upon x, तो look, y cancel with y, x cancel with x, so your answer is 2. So यहाँ क्या आ जाएगा, 2. देन मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट को, तो ये तो ऑब्वियसली -10y बाई एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, y मल्टीप्लाइड विद y, न्यूमिनेटर विल मल्टीप्लाइड विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. तो प्लस माइनस, nothing is left. So what is your answer? So your answer is square root of question. This is your question. Square root of your question is plus minus this this x by y minus 5 plus y by x. Make a box.
x by y minus 5 plus y by x, this is your answer. I hope students this method how to find square root by Devian method is clear to you, and please remember the tip I have given you to find quotient. Believe me, it is a very easy tip, and from by remembering this tip you can find square root by Devian method. Now you can practice its example number 1, example number 2 by yourself by using this Devian method. Okay. So, okay, take care students. Allah Hafiz.